جو حدیث یہ پڑھ رہے ہیں اس بڑی بات، اور خاص کر اپنے دیسی لوگ جو ہے اسلام کو اتنا ہارڈ کر دیتے ہیں کہ ہم کو اسلام پہ چلنے کے لیے مشکل کر دیتے ہیں جسے صحیح بات ہے. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے دیسیوں کے لیے، ہاں؟ دیسیوں کے لیے، ہاں خاص کر دیسیوں کے لیے، اچھا دیسیوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اسلام کو بہت ٹف کر دیتے ہیں. دکنی کے لیے. مطلب ہم سب پاکستانی، ہندوستانی، حیدرآبادی ہر سب کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے متعلق جس پہ شدت کی گرمی کی وجہ سے سایہ کر دیا گیا تھا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اب ہم لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے، اب ہم پلین میں سفر کر رہے ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، یہ سب کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا. سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. بہت اچھی پوائنٹ کی بات بتائی. بہت آپ چاہے پلین سے سفر کرو، آپ راکٹ سے کرو، آپ کوئی بھی لائٹ سے آپ فاسٹ بھی ٹریول کر لو، سفر میں روزہ کی کوئی نہیں ہے، نیکی نہیں. میرے ایک دوست تھے دور تک تو جانا انہوں نے بھی کیا جو ہے کیا تھا، وہ بھی سفر ہے. یہاں سے شکاگو سے وہ بنگلور جا رہے تھے. شکاگو سے روزہ رہے، پھر اس کے بعد میں دبئی میں روزہ ہو گیا، پھر انڈیا گئے، یعنی کہ ان کا آلموسٹ 24-36 آورس کا روزہ ہو گیا. میرے کو بولے میں 36 آور کا روزہ رہا. بولا وہ تو غلط ہے، وہ تو ہو نہیں بالکل ہی سکتا، غلط ہے. ہو نہیں سکتا. نہیں میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہتا. بولا اگر آپ کو اتنا ہی ہے آپ سفر مت کرو رمضان میں. بس صحیح، سیدھا سا. Yes. اور 4 گھنٹے میں وہاں پہ چینج ہوتا رہتا ہے. ختم. اثر آ گئی مغرب آ گئی. ہم سے آدم نے حدیث بیان کرتے ہیں کہ شعبہ حدیث بیان کرتے ہیں، محمد بن عبد الرحمن انصاری نے حدیث بیان کی. کہا میں نے عبداللہ بن عمر حسن علی سے سنا ہے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجموعہ دیکھا کہ ایک شخص پہ لوگ نے سایہ کر دیا، کچھ لوگ جو ہے سایہ کر دیے تھے، جب سفر میں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا بات ہے، ان کے سر کے اوپر حال کے سایہ کر کے کیوں چل رہے ہیں. ایک روزے دار ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں شخص جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں یہ روزے دار ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روک دیا گیا ہم وہاں پہ رک جانا ہے. بالکل صحیح. اگر ہم وہ چیز سے آگے بڑھیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. اچھا میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. جی. یہ جو لوگ رمضان میں عمرے کرنے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو روزہ نہ رکھنا ہے سفر میں روزہ. میں اس آج سے کچھ ایک سال تھا تو ہم جو ہے عمرے کو گئے تھے، میں نے روزہ نہیں رکھا. یہاں سے تو لمبا ہے، پاکستان وغیرہ سفر کا سفر ہی ہے. یہاں سے نہیں جانا ہے، وہاں رکھ سکتے ہیں جا کے. وہاں جا کے رکھ سکتے ہیں. ہاں وہاں رکھ سکتے ہیں، وہاں جا کے رکھ سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے سفر میں روزہ نہیں رکھنا. اب آپ لوگ یہ نہیں کہنا کہ کیپٹل کے کا بھی گھر سے یہاں سفر ہے. اپنے پاس جو لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ جو 40 مائل جو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نماز قضا کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو شیخ رضوان جو ہے میں ان کے ساتھ لیکچر سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جب کسی چیز کو سفر میں جاتے ہیں، جیسا میرا جاب جو ہے 50 مائلز پہ تھا، تو بولا اب میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا آپ جب سفر کو جاتے ہیں اپنے کپڑے بن لیتے ہیں، سب بنتے ہیں، کیا آپ اپنی جاب کو جاتے وقت کپڑے لے کے جاتے ہیں؟ نہیں لے جاتے. ذرا بات سننے. تو سفر اس کو کہتے ہیں
आप अपने जरूरियात जो है जमा कर लेते हैं, कपड़े हैं, टूथपेस्ट है, वो चीज़ है, तो उसको हम सफर में लेके आते हैं। ये तफसील वो जनाब वाला उसमें वो मैंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी काहिरा में ये सवाल रेज किया था। उनका ये कहना था इमाम साहब का जो मदीर फ़िक़ा थे, यानी हेड ऑफ द फ़िक़ा, तो उनका ये कहना था कि अगर आपका सफ़र आप जहाँ है वहाँ से अगर ऊँट जो है एक दिन का जो सफ़र करता है जो कि 50-55 मील से ज़्यादा नहीं हो सकता, वहाँ तक जा रहे हैं तो आप सफ़र में हैं, तो आप और जहाँ सूरज ग़ुरूब हो जाता है हर सूरत में, तो आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है रोज़ा रखना। मैं ये कह रहा था कि एक मरतबा मैं गया पाकिस्तान, तो उम्रा करके फिर वहाँ से हम लोग वहाँ गए। जब मैं वहाँ गया तो सब सैरी के लिए उठे सुबह, हम लोगों ने सैरी करी, फिर सैरी करने के बाद मैं 8-9 बजे मैं बैठ के नाश्ता कर रहा था, उसी इजाज़त वही नहीं है। क्या तो वो तो वहाँ पर ईदी हुई थी, लेकिन ये कि हाँ यहाँ पर हो गई। अच्छा, और ये भी हदीस अपने देशियों के लिए परफेक्ट फिट होगी। परफेक्ट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सफर में रोजा रखने ना रखने की वजह से एक दूसरे पर नुक्ताचीनी नहीं किया करते थे। बिल्कुल। हम लोग तन बोले कि फतवे पे आ जाते हैं, तन बोले कि फतवा, अरे वो कैसे है, वो रोजा नहीं रखते, वो ऐसे है, वो ऐसे है। और एक खास बात बोलूं, मुसलमान जो काफिर बोलते हैं, गैर कौम नहीं बोलती, मुसलमान के सुन्नी बोलता शिया काफिर है, शाकिर शिया बोलता उन्हें काफिर है, उन्हें बोलता रोजा फातिहा देने वाला काफिर है। हम लोग आपस में तो हम लोग किसी पे भी नुक्ताचीनी ना करें। क्यों तो उसकी क्या वजह है, उसकी क्या वजह नहीं है, वो बेहतर जानता। मैं अगर मेरी कुछ मजबूरी है, मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता, तो आप मेरे से नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। आप बोले हम नहीं करेंगे, आप बोले हम नहीं करेंगे, नहीं नुक्ताचीनी करना ही नहीं। आप बोले हम तो नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। हाँ, मैं हदीस की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जितने रमजान में है ना, सब एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हो। हाँ, वो सच्ची बात कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नमाज के लिए नहीं आ रहा, तो हम खाली एक बार बोलेंगे भाई नमाज का टाइम है। शायद हो सकता उसको पेशाब के छींटे उतर गए होंगे, अपने घर में जाके वहाँ के नमाज पढ़ने चाह रहा है, आप उसको फोर्स कर दें, कहीं क्यों नहीं आ रहे नमाज को, कहीं क्यों नहीं आ रहे नमाज को, वो बेचारा परेशान में आ गया, आप भी गुनहगार, उन्हें भी गुनहगार। क्योंकि हमको गायबी इल्म नहीं है, खाली इतना बोलो नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़ो, आप आओ आप नको आओ, ये 2 वक्त नहीं बोलना, 1 वक्त बोलो नमाज का टाइम हो गया। किसी को डायरेक्ट कहना भी नहीं चाहिए, क्या हाँ। पता वो बेचारा किस मजबूरी में है, क्या है। और एक उलमाए ये बोलते हैं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप किसी को जोर से बोल के बुला के लेके आएंगे, अगर वो कह देगा मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो आप कुफरी अल्फाज बोल दे रहे, आप उसको इस्लाम के दायरे से निकाल दें। तो इस्लाम में चाहे वो है, हम एहतियात से काम करें। आप नमाज पढ़ना है, आप पढ़ें, किसी की कुछ वजह होती है, उस वजह से कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहता, कुछ भी वजह होती है, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, अल्लाह सबको ये कर दे, सबको हिदायत दे दे, वो दे दे, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह ताला ने रसूल को कहा, रसूल तुम्हारा काम खाली को हिदायत देना, मैसेज पहुंचाना था, आपके काम आपका काम खाली मैसेज, सिर्फ मैसेज पहुंचाना। उन्हें बताओ
तो हम लोग जो है यहाँ से किसी में भी नुकता नहीं है। आज जो हदीस ये पढ़ रहे हैं इस बड़ी बात, और खासकर अपने देसी लोग जो है इस्लाम को इतना हार्ड कर देते हैं कि हमको इस्लाम पे चलने के लिए मुश्किल कर देते हैं जैसे। सही बात है। तो इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। देशियों के लिए, हाँ? देशियों के लिए, हाँ, खासकर देशियों के लिए, अच्छा देशियों के लिए, क्योंकि हम लोग जो है इस्लाम को बहुत टफ कर देते हैं। दखनी के लिए, मतलब हम सब पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, हैदराबादी, हर सब के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स के मुताल्लिक़ जिस पर शिद्दत की गर्मी की वजह से साया कर दिया गया था, सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है। सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है। अब हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अब हम प्लेन में सफर कर रहे हैं, हम ये है वो है, ये सब गलत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का इल्म था। सफर में रोजा रखना जायज नहीं है। बहुत अच्छी पॉइंट की बात बताई। बहुत आप चाहे प्लेन से सफर करो, आप रॉकेट से करो, आप कोई भी लाइट से आप फास्ट में ट्रैवल कर लो, सफर में रोजा की कोई नहीं है, नेकी नहीं। मेरे एक दोस्त से है, किंग रोड तक तो जाना उन्होंने क्या भी है, किया था, वो भी सफर है। यहाँ से शिकागो से वो बेंगलोर जा रहे थे। शिकागो से रोजा रहे, फिर उसके बाद में दुबई में रोजा हो गया, फिर इंडिया गए, यानी कि उनका ऑलमोस्ट 24-36 आवर्स का रोजा हो गया। मेरे को बोले मैं 36 का आवर का रोजा रहा, मतलब वो तो गलत है, वो तो हो नहीं बिल्कुल ही सकता, गलत है। हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, मैं रोजा नहीं छोड़ना चाहता। मतलब अगर आपको उतना ही है, आप सफर मत करो रमजान में। बस सीधा सा यस, और 4-4 घंटे में वहाँ पे चेंज होता रहता है, खत्म। असर आ गई वगैरह बात है। हमसे आदम ने हदीस बयान करते हैं कि शोभा हदीस बयान करते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अंसारी ने हदीस बयान की, कहा मैंने अब्दुल्ला बिन उमर हसन अली से सुना है, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, और सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मजमुआ देखा कि एक शख्स पे लोग ने साया कर दिया, कुछ लोग जो है साया कर दिए थे, तब सफर में था। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या बात है, इनके सिर के ऊपर जो थोड़ा सा उठा लेके साया करके क्यों चल रहे हैं? एक रोजेदार है, तो उन्होंने कहा कि ये फला शख्स जो हमारे साथ सफर कर रही है, ये रोजेदार है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है। हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से रोक दिया गया, हम वहाँ पे रुक जाना है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम वो चीज से आगे बढ़ेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। जी, ये जो लोग रमजान में उम्रे करने जाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनको रोजा नहीं रखना है, सफर में रोजा। मैं इस आज से कुछ एक साल था तो हम जो है उम्रे को गए थे, मैंने रोजा नहीं रखा। यहाँ से तो लंबा है, पाकिस्तान वगैरह सफर से का तो सफर ही है। नहीं। यहाँ से नहीं जाना है, वहाँ रुक सकते हैं जाके। वहाँ जाके रख सकते हैं। हाँ, वहाँ रख सकते हैं, वहाँ वहाँ जाके रख सकते हैं। वहाँ रुक जाके सफर में रोजा नहीं रखना। खत्म। अब आप लोग ये नहीं कहना कि कैपिटल के का भी घर से यहाँ सफर है। हाँ, अब अपने पास जो लोग बोलते हैं ना कि आप जो 40 माइल जो जाते हैं तो वहाँ पे आपको नमाज अदा करना पड़ता है। बिल्कुल। तो शेख रिजवान जो है, मैं उनके साथ लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप जब किसी चीज को सफर में जाते हैं, जैसा मेरा जॉब जो है 50 माइल्स पे था, तो बोला अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा आप जब सफर को जाते हैं, अपने कपड़े बन लेते हैं, सब बनते हैं, क्या आप अपनी जॉब को जाते वक्त कपड़े लेके जाते हैं?
बात ले सुने लेंगे। जरा बात सुनने दे प्लीज। तो सफल उसको कहते हैं आप अपने जरूरियात जो है जमा कर लेते हैं, कपड़े हैं, टूथपेस्ट है, वो चीज़ें हैं, तो उसको हम सफल में लेके आते हैं। ये तफसील वो जनाब वाला उसमें वो मैंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी काहिरा में ये सवाल रेज किया था। उनका ये कहना था इमाम साहब का जो मदीर फ़िक़ा थे, यानी हेड ऑफ द फ़िक़ा, तो उनका ये कहना था कि अगर आपका सफ़र आप जहाँ है वहाँ से अगर ऊँट जो है एक दिन का जो सफ़र करता है जो कि 50-55 मील से ज़्यादा नहीं हो सकता, वहाँ तक जा रहे हैं तो आप सफ़र में हैं, तो आप और जहाँ सूरज गुरूब हो जाता है हर सूरत में, तो आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है रोज़ा रखना। बेशक। मैं ये कह रहा था कि एक मरतबा मैं गया पाकिस्तान, तो उम्रा करके फिर वहाँ से हम लोग वहाँ गए। जब मैं वहाँ गया तो सब सहरी के लिए उठे सुबह से, हम लोगों ने सहरी करी। फिर सहरी करने के बाद मैं 8-9 बजे मैं बैठ के नाश्ता कर रहा था। किसी इजाज़त सुबह नहीं क्या है। है, तो वो तो वहाँ पर ईदी हुई थी, लेकिन ये कि हाँ यहाँ पर होगी। अच्छा, और ये भी हदीस अपने देशियों के लिए परफेक्ट फिट हुई। परफेक्ट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सफर में रोजा रखने ना रखने की वजह से एक दूसरे पर नुक्ताचीनी नहीं किया करते थे। बिल्कुल हम लोग दम बोले कि फतवे पे आ जाते हैं, दम बोले कि फतवा, अरे वो कैसे है, वो रोजा नहीं रखते, वो ऐसे है, वो ऐसे है। और एक खास बात बोलूं, मुसलमान को जो काफिर बोलते हैं, गैर कौम नहीं बोलती, मुसलमान नहीं बोलते। कि सुन्नी बोलता शिया काफिर है, शाकिर शिया बोलता उन्हें काफिर है, उन्हें बोलता रोजा फातिहा देने वाला काफिर है। हम लोग आपस में तो हम लोग किसी पे भी नुक्ताचीनी ना करें। ना करें, क्यों, तो उसकी क्या वजह है, नहीं सकता। उसकी क्या वजह नहीं है, वो बेहतर जानता है। मैं अगर मेरी कुछ मजबूरी है, मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता, तो आप मेरे से नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। आप बोले हम नहीं करेंगे, हाँ? आप बोले हम नहीं करेंगे, नहीं, नुक्ताचीनी करना ही नहीं है। आप बोले हम तो नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, मैं हदीस की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जितने रमजान में है ना, सब एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे होते। हाँ उससे अच्छी बात कह रहे हैं, फॉर गलत नहीं कह एग्जाम्पल, रहे। अगर कोई नमाज के लिए नहीं आ रहा, तो हम खाली एक बार बोल देंगे नमाज का टाइम है। शायद हो सकता उसको पेशाब के छींटे उतर गए होंगे, अपने घर में जाके वहाँ के नमाज पढ़ने चाह रहा होगा, आप उसको फोर्स कर दें, कहीं को नहीं आ रहे नमाज को, कहीं को नहीं आ रहे नमाज को, वो बेचारा परेशान में आ गया, आप भी गुनहगार, उन्हें भी गुनहगार। क्योंकि हमको गायबी इल्म नहीं है, खाली इतना बोलो नमाज का टाइम होगा, नमाज पढ़ो, आप आओ आप नको आओ, एक से दो ये 2 वक्त भी नहीं बोलना, 1 वक्त बोलो नमाज का टाइम हो गया। किसी को डायरेक्ट कहना भी नहीं चाहिए, क्या हाँ। पता वो बेचारा किस मजबूरी में है, क्या है। और एक उलमाए ये बोलते हैं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप किसी को जोर से बोल के बुला के लेके आएंगे, अगर वो कह देगा "जो, मैं नमाज नहीं पढ़ता", तो आप कुफरिया अल्फाज बोल दे रहे, आप उसको इस्लाम के दायरे से निकाल दे रहे। तो इस्लाम में क्या है, वो एहतियात से काम करना। आप नमाज पढ़ना है, आप पढ़ें, किसी की कुछ वजह होती है, उस वजह से कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहता, कुछ भी वजह होती है, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, अल्लाह सबको ये कर दे, सबको हिदायत दे दे, वो दे दे, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह ताला ने रसूल को कहा, रसूल तुम्हारा काम खाली बोलना है, हिदायत देना है।
मैसेज पहुंचाना था आपके काम आपका काम खाली मैसेज, सिर्फ मैसेज पहुंचाना उन्हें बताओ तो हम लोग जो है यहाँ से किसी के भी नुकता नहीं, और कई लोग अपन लोग जो है मस्जिद में जाते हैं, ये मैंने बहुत कॉमन है, वो बेचारा अच्छा खासा दिखता, आपको नहीं मालूम कि उसका नी का रिप्लेसमेंट हुआ या उसको बैठने नहीं आ रहा, उसकी सर्जरी हुई, वो बैठ के नमाज पढ़ता ना, 5 लोगों ने कितना कट्टा है देखो, बैठ के नमाज पढ़ रहा, बैठ के नमाज पढ़ रहा। और जैसा आज से 2-3 साल पहले मेरी उसकी सर्जरी हुई थी, गाल ब्लैडर की, मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा था। अब मैं अपने गले में लाइसेंस नेम प्लेट तो नहीं डाल सकता, मेरी सर्जरी में बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर बोलने वाले बोल दिए मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ, हमको नॉलेज नहीं है, तुम्हें नमाज क्यों बैठ के पढ़ रहा है, उन्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो अपन लोग आज की तारीख से किसी पे भी बगैर समझे सोचे के नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, चाहे वो रोजा रहो, वो रोजा मत रहो, वो नमाज पढ़ो, नमाज ना पढ़ो। तो बंदा आपको नहीं बोल सकता कि भाई मेरी ताकत नहीं है, टूट गई ताकत, पेशाब हो गया, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल वो बताएं बार बार नहीं पूछे, सबसे खुद भी गुनाहगार हमें भी रोजा है मेरे सिस्टर हो गए, मैं पूरे आ रहा है मेरे पूरा एक भी नहीं मेरा टूटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सही हो गए। अपन नेक्स्ट हदीस जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब रमजान ही आएगा, दोबारा हम जब हदीस पढ़ेंगे नेक्स्ट मंडे, जब इंशाल्लाह जब रमजान रहेगा, इंशाल्लाह शायद मुस्तनद अली खान साहब आ जाएंगे, तो उस वहाँ से हम डेली हदीस पढ़ेंगे। तरावी के लिए तरावी अब फिदिया का भी बोलिए कितनी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं 22 रोज पढ़ना जरूरी है, 20 रोज पढ़ना जरूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली 3 दिन पढ़ा, ने तरावी सिर्फ 3 दिन पढ़ा, 3 दिन खाली। हाँ, और ऐसे काम में बैठते हैं ना, उसके बाद वो घर से बाहर नहीं आए। घर से बाहर नहीं निकले, या सही बात। उनको डर था हाँ, कि कहाँ फर्ज हो जाती थी मेरी उम्र के ऊपर, सही बात। बहुत बोझ हो जाएगा, बहुत बोझ हो जाएगा। और माशाल्लाह खाली नमाजों में मस्जिद खाली, तरावी पढ़ने का है वो तो दबा के 50 की 5 नहीं पढ़ी जा रही। आपको फर्ज नमाज है, तरावी जो है सुन्नत भी नहीं है, सुन्नत नहीं है। अल्लाह ने कुछ कहा आपको तरावी पढ़े से नहीं पढ़े, हाँ पढ़ लिए तो सवाब है, उसमें कोई शक नहीं। नफिल है, नफिल नमाज है, हाँ, पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि तरावी पढ़ना गलत है, नहीं बोल रहा हूँ, बात तो है। सवाब है, मगर नफील में सवाब है। अगर आप तरावी पढ़ के 20 रकात आप फजर छोड़ दिए, वो बिल्कुल सरासर गलत है। शाहिर भाई, फिदिया जो देना होता है सिर्फ यहाँ इसी वक्त में देना होगा या पाकिस्तान भेज सकते हैं पैसा? आप दे सकते हैं। तो उनके लिहाज से पैसा या नहीं, आपके लिहाज से, आपके लिहाज से, आप यहाँ है ना, राइट? तो आप यहाँ के लिहाज से पैसा, हाँ, वो यहाँ है। जैसा आप ज़कात देंगे तो आप ज़कात US डॉलर में देंगे, राइट? उसको कन्वर्ट करके रुपया हम करेंगे, वो तो मगर आपका कैलकुलेशन बेस्ड ऑन US डॉलर, नॉट इंडियन पाकिस्तानी करेंसी। तो आप जो भी फितवा देंगे, जो भी हमारे मस्जिद के कुछ बोलते हैं वो लोग, वो हिसाब से US डॉलर में देंगे। वो हदीस पढ़ के नहीं करता हूँ, पढ़ के नहीं।